So in the previous class we have discussed the formula or the result which we have derived in fact, and that result was A into adjoint of A, which is equals to adjoint of A into A, and that is nothing but determinant of A into a unit matrix that we have derived, and using that result only we have discussed what is inverse of a matrix, and that inverse of a matrix is nothing but adjoint of A upon determinant of A that we have discussed. Now we will be deriving some more results based on that, some more results in fact, और वो results भी आपको तैयार करना रहेंगे. So दूसरे results को derive करने से पहले एक और important result देखते हैं हम. A is a square matrix, B is also a square matrix, and both the matrix are of same order. दोनों ही matrix जो हैं same order के हैं. A is a square matrix, B is a square matrix, and both the matrix are of square order with same order. n by n का order मान लीजिए, 3 by 3 का मान लीजिए. The result is, if you multiply the two matrix A B, दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप ए बी, एंड इफ यू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स. क्या बोला है मैंने आपको? ए इज ए इन बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n. ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं. इफ यू गो ऑन मल्टीप्लाइंग दोस टू मैट्रिक्स, तो ए बी एक नया मैट्रिक्स होगा दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से जो बनेगा, और जो नया मैट्रिक्स होगा, इफ यू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए बी मैट्रिक्स, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट विल बी इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स. एक छोटा सा एग्जांपल लेके जरा वेरीफाई भी कर ले हम इस फैक्ट को. लेट्स से A is a matrix of order 2 by 2, which is 1 2 3 4. B is a matrix -2 0 1 3, right? ये बहुत काम में आएगा रिजल्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं मैं. So if I multiply these two, AB मैट्रिक्स, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही बात हो पाएगी जो भी है वो. अच्छा, if I ask you the value of the determinant, the value of the determinant is clearly here, it is 4 minus 6, which is -2, and value of the determinant B, that will be equals to -6, right? So AB matrix को अगर मैं देखता हूँ तो that AB matrix is रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन इज देयर. रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन अगर आप देखते हैं तो इट विल बी -2, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा आप -2 + 2. ओके, इट इज कमिंग एज 0, फाइन. 1 into 0, 2 into 3, 6. ओके, देन रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 -6 + 4 -2, 12, fine. That's the new matrix which is coming after the multiplication of the two matrix. And if I take the determinant of that AB matrix और उसका determinant अगर मैं लेता हूँ, that will be equals to, it is 0 -12 with minus sign, so +12, and you can definitely verify it is coming as AB matrix, and determinant of that is coming as equals to determinant of A into determinant of B. और अब इस रिजल्ट का हम अच्छा खासा यूज करने वाले हैं नेक्स्ट रिजल्ट्स को डिराइव करने के लिए. इस क्लास में मैक्सिमम रिजल्ट्स हम डेरिवेशंस के ऊपर ही देखने वाले हैं, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा. सो नाउ यूजिंग द रिजल्ट A into adjoint of A, which is equals to determinant of A into a unit matrix, and these two are same. A into adjoint of A लिखो या adjoint of A into A लिखो, these two results are same, which is equals to determinant of A into a unit matrix. देखिए, A into adjoint of A, which is equals to determinant of A into a unit matrix. ठीक है, अब मैंने क्या किया, definitely A is a matrix, square matrix, clearly adjoint of A is also a square matrix of the same order, and multiplication of the two is also going to give you a square matrix. वो तो resultant एक matrix होगा which is nothing but a unit matrix multiplied with the determinant. अब मैं क्या करता हूँ, if I take determinant both sides,
ठीक है, A into adjoint of A, and if I take the determinant of that, that will be equals to, ले सकते हैं क्यों नहीं ले सकते हैं, दैट रिजल्ट ऑलरेडी आई हैव रिटन ना, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो रिजल्ट आएगा, या इफ यू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट, दैट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द टू इंडिविजुअल मैट्रिसेस A as well as B. तो मैंने क्या किया, अभी उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट मतलब दैट विल बिकम अ वैल्यू. So using that result, I can definitely write determinant of A into determinant of adjoint of A, which is equals to, now it is determinant of A multiplied with a unit matrix, and I want to take the determinant of that. Anybody can tell me the value of that? Now it's a value. If I am taking the determinant, now it is becoming a value. ये value है. When I said matrix, matrix is not a value, matrix is just arrangement of elements. लेकिन जब मैंने determinant लिया तो yes, it gives the value of that value of that matrix, square matrix. Can you tell me the value of that? Determinant of A multiplied with a unit matrix, and I want determinant of that. Let's say that A is a square matrix of order n by n. What do you suggest? What is going to be that result here? If I say, इसको और थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा ध्यान से, if I take a unit matrix of order 3 by 3, है ना, let's say this result, भाई ये रिजल्ट तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा, तो 3 by 3 का एक मैट्रिक्स लेके समझाता हूं मैं आपको, कहीं जल्दबाजी में ये ना हो जाए कि बोले सर ठीक है डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का डिटर्मिनेंट लोगे, दैट विल बी 1, तो बोले सर ठीक है इट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ऐसा नहीं लिखने का, देखिएगा, लेट्स से आई टेक अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, that will be equals to determinant of A 0 0 0, determinant of A 0 0 0, and determinant of A, right? That is the meaning of this unit matrix is getting multiplied with the determinant. If I take the determinant of that, अब मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट लेता हूं, समझिएगा उस बात को ना, क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट क्यों जो भी आप कर रहे हो. If I take the determinant of that, what result is going to be there? Determinant of A and cube of that. It is nothing but determinant of A cube. So if I say that A is a square matrix of order n by n, A is a square matrix of order n by n, so it is going to be determinant of A raised to power n. 3 by 3 का अगर मैट्रिक्स था तो in that case it is determinant of A cube. So it is determinant of A raised to power n, and it is adjoint of A, and determinant of that will be equals to determinant of A raised to power n minus 1. So now you are getting a new result, which is, you should remember also that result, वो याद रखना होगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत हेल्पफुल रिजल्ट है ये भी, रहेंगे इनफैक्ट जो भी रिजल्ट्स अभी हम देखने वाले हैं एंड डेरिवेशन के साथ देखने वाले हैं. एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट. एडजॉइंट ऑफ ए क्या एक मैट्रिक्स है भाई, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो व्हेन यू टेक एडजॉइंट इट इज अगेन गोइंग टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इफ यू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया और एडजॉइंट का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस, है ना. तो एज ए रिजल्ट तो हमें इसको नोट करना ही है, याद रखना ही है, हाउ इट इज कमिंग, विद इन 2-3 स्टेप्स इट इज कमिंग. Now the result which we have derived just now, that is adjoint of A and its determinant. Adjoint of A and its determinant, that is equals to determinant of A raised to power n minus 1. ये रिजल्ट किस मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा, तो ये मैट्रिक्स इट होल्ड्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स.
ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा, तय बात है। अभी अगर ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा, तो अगर मैट्रिक्स ए के लिए होल्ड करता है डेफिनेटली, तभी तो आपने लिखा है मैट्रिक्स ए के लिए होल्ड करता है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए के लिए भी होल्ड करेगा। तो मैंने क्या किया, इन प्लेस ऑफ ए, भाई ये इट होल्ड्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फाइन। तो अगर ये ए मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है तो ए के एडजॉइंट के लिए भी होल्ड करेगा। बोले सर ये तो आपने लिखा ही है। लिखा तो है, मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए। तो अगर ये ए के लिए होल्ड करता है तो इट होल्ड्स फॉर एडजॉइंट ऑफ ए ऑल्सो। तो इन प्लेस ऑफ ए, ठीक है ना, कीप एडजॉइंट ऑफ ए। तब तो रिजल्ट में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ए इज a स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। सो आई कैन डेफिनेटली राइट adjoint of A, adjoint of A, that will be equals to, in place of A it is adjoint of A and raised to power n minus 1. ऑलरेडी जो हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ एन इट्स डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए इन इट्स डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय determinant of a raised to power n minus 1. So it is determinant of a raised to power n minus 1 and whole raised to power n minus 1. तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, determinant of a raised to power n minus 1 whole square of that. तो क्या रिजल्ट मिला हमें? जो रिजल्ट मिला, adjoint of a and its determinant is equals to determinant of a raised to power n minus 1 whole square. मैंने आपको बताया कि ये सारे रिजल्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर ये रिजल्ट्स तैयार होते हैं तो आपका काम बहुत सिंपल हो जाता है, और अदरवाइज उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। एंड अलॉन्ग विद द डेरिवेशंस वी आर लुकिंग फॉर दैट। दो तीन लाइन में सब रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन वी आर लुकिंग फॉर द डेरिवेशंस सो दैट हम कंफर्टेबल हो जाएं मैट्रिक्स के साथ में, और एट द सेम टाइम भी रिजल्ट्स तो हमें तैयार करना ही होंगे। किया क्या हमने कहा ओके दिस रिजल्ट इज गुड, तो इफ होल्ड्स फॉर ए तो उसके एडजॉइंट के लिए भी होल्ड करेगा, तो ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दिया एंड वी गॉट अ न्यू रिजल्ट। नोट डाउन दिस। सो वी आर डिराइविंग रिजल्ट्स वन बाय वन एंड दोज आर द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। और ये जो भी रिजल्ट्स हैं वी आर डिस्कसिंग फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। So and we are taking in fact the basic result which we have discussed is A into adjoint of A, which is equals to determinant of A into unit matrix. In fact it is the basic result through which हमने काफी सारे रिजल्ट डिस्कस किए, करेंगे in fact. So again A into adjoint of A is equals to determinant of A into a unit matrix, and that result is valid for any square matrix. अगर ये ए मैट्रिक्स के लिए वैलिड है तो उसके एडजॉइंट के लिए भी वैलिड है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। लेकिन मैंने उधर पे उसके डिटर्मिनेंट में वैल्यू प्लेस करी थी। सो इन प्लेस ऑफ ए, अगर ये ए मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है तो उसके एडजॉइंट के लिए भी करेगा, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा। देन प्लेस ऑफ ए की एडजॉइंट ऑफ ए रख सकते हैं। तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सबके लिए वैलिड है। सो इन प्लेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए। यहां ध्यान रखते हुए चलिएगा कहां डिटर्मिनेंट है कहां मैट्रिक्स है। इन प्लेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इन प्लेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए into a unit matrix, resultant एक मैट्रिक्स होगा, है ना। It is adjoint of A into adjoint of A, that will be equals to, just now we have discussed adjoint of A and its determinant is what? Determinant of A raised to power n minus 1 multiplied with the
यूनिट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मत गायब कर लेना, हर बोले सर यूनिट मैट्रिक्स है, जाने दो। रिजल्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी अ मैट्रिक्स। ये तो दैट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद सम स्केलर वैल्यू एंड दैट स्केलर वैल्यू इज डिटरमिनेंट ऑफ a raised to power n minus 1। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कहाँ डिटरमिनेंट लिख रहे हो, कहाँ मैट्रिक्स लिख रहे हैं। फाइन, अभी ठीक है, अभी मैंने देखा ओके एडजॉइंट ऑफ ए, जो ऑलरेडी हमारे नॉलेज में वो ये कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू यूनिट मैट्रिक्स। सो प्री मल्टीप्लीकेशन, यस वील हैव टू डिस्कस अबाउट द प्री एंड पोस्ट। द रीजन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। तो प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट इक्वेशन, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए मैट्रिक्स, पूरी इक्वेशन को ए मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई किया। बोले सर क्यों सोच रहे हो आप? द रीजन इज a into adjoint of a will become determinant of a into a unit matrix. That's why I am thinking in that direction, pre multiplication by a. So it will be a into adjoint of a, that will be equals into adjoint of a, that will be a से प्री मल्टीप्लाई किया हमने। a is a matrix, this is a scalar value which is determinant। बहुत ध्यान रखते हुए काम करिएगा, राइट। क्यों किया था आपने मल्टीप्लाई? व्हाई यू थॉट इन दैट डायरेक्शन? द रीजन इज a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, उसका कारण है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट determinant of a into a unit matrix. So determinant of a into a unit matrix, determinant of a raised to power n minus 1 is a scalar value। वो एक स्केलर वैल्यू है। ai स्केलर वैल्यू है, इसको मैंने इसलिए बाहर लिख दिया है ना। ये 2 है, 10 है, 100 है, so that 100 can be written outside है ना, 100 ai। as far as ai is concerned, whenever you multiply a matrix with any unit matrix, you are going to get the same matrix। ai हो या ia हो, that will be equals to a। and whenever a matrix is multiplied with a null matrix, we are going to get a null matrix only। देखो यहाँ पे तो determinant of a unit matrix multiplied with the adjoint of a, you are going to get the same matrix। बोले सर भारी सा लग रहा है, होने दीजिए। adjoint of a, right, that's a determinant, fine, is equals to determinant of a raised to power n minus 1, ai is nothing but a। We are getting a new result which is adjoint of a is equals to determinant of a raised to power n minus 2 multiplied with a। That's a new result। बोला सर पहले भी तो बताया था आपने, adjoint of a, that was what? adjoint of a and determinant of that is equals to determinant of a raised to power n minus 1 whole square। Please note down this। Again we discuss the same result। देखिएगा तो बेसिक रिजल्ट है वो है a into adjoint of a which is equals to determinant of a into a unit matrix। ठीक है, देखिएगा बहुत आसानी समझ लेंगे आप। so अभी ये रिजल्ट होल्ड करता है, दैट होल्ड्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, सो इन प्लेस ऑफ a, अगर ये a के लिए होल्ड कर रहा है तो उसके एडजॉइंट के लिए भी करेगा, क्योंकि a अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ एक नया मैट्रिक्स होगा जो भी 3/3 का ही होगा। तो इन प्लेस ऑफ a हमने एडजॉइंट ऑफ a को रख दिया। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, इन प्लेस ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, इन प्लेस ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, एवरीवेयर इन दैट इक्वेशन। ऑलरेडी वी आर हैविंग द आइडिया दैट एडजॉइंट ऑफ a इन इट्स डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ a और उसका जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to power n minus 1 that we have discussed as well as derived। adjoint of a, and if I take the determinant of that is determinant of a raised to power n minus 1। so fine, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। adjoint of a into adjoint of a। अब हमने क्या किया,
हमने इस पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई किया विथ मैट्रिक्स ए। प्री मल्टीप्लीकेशन बोलना आवश्यक है क्योंकि हम यहाँ पर मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, तो ए बी को इन जनरल बी ए नहीं लिख सकते हम, तो हमें प्री मल्टीप्लीकेशन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन की टर्म्स यूज करना होगी। तो प्री मल्टीप्लीकेशन एंड बोथ साइड्स प्री मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो क्यों सोचा हमने प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए, व्हाई यू थॉट इन दैट डायरेक्शन? द रीजन इज ए से प्री मल्टीप्लाई करने पे इट विल बिकम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलरेडी नोन टू अस एज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए यूनिट मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, as far as this determinant is concerned, determinant of a raised to power n minus 1 is a scalar value, that's some scalar value, fine. So a into adjoint of a को मैंने replace किया determinant of a into a unit matrix से, which is multiplied with adjoint of a is equals to, in the right hand side if you observe, determinant of a raised to power n minus 1 is a scalar value, and then a into I. What we have discussed that if you are multiplying any square matrix with any unit matrix, सेम ऑर्डर के होंगे, तो ए आई इज नथिंग बट ए ओनली, दैट वी हैव यूज्ड हियर। तो ए आई इज नथिंग बट ए, एंड यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ऑफ ए इज एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स है वैसे ही रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, नाउ इट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, इन द राइट हैंड साइड इट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n minus 1, तो इट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n minus 2 इनटू ए, दैट इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट होगा, है ना। अब जैसे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ यू टेक द एडजॉइंट ऑफ ए, वो नया स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, और उस एडजॉइंट मैट्रिक्स का भी फिर से आप एडजॉइंट लेते हैं। आप में से किसी ने एक मजेदार सी बात कही कि सर वो तो A बन जाएगा, A कैसे बन जाएगा? वो इट्स नॉट बिकमिंग A अगर बन जाता तो वो यहाँ पे दिखता आपको, अगर वो A बनता तो यहाँ पे A ही आता है, इट्स नॉट बिकमिंग A। तो एडजॉइंट ऑफ ए, जो नया मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए, और उसका फिर से एडजॉइंट अगर लेते हैं आप, व्हाट यू आर गेटिंग डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n minus 2 इनटू अ ए मैट्रिक्स। ये रिजल्ट्स जितने तैयार रहेंगे उतना आसान आपके लिए कैलकुलेशंस रहेंगे, ठीक। सो यूजिंग दैट रिजल्ट, जिन रिजल्ट्स की हमने बात करी उनको समराइज भी अगर साथ में करते जाएं, क्या क्या रिजल्ट्स थे? एडजॉइंट ऑफ ए and its determinant is equals to determinant of a raised to power n minus 1, ठीक। The second result which we have discussed, that is adjoint of a and its determinant is equals to determinant of a raised to power n minus 1 whole square। a को adjoint of a से रिप्लेस किया हमने, adjoint of a, and that adjoint of a, that is what? Determinant of a raised to power n minus 2 into a। ये ध्यान रखने वाली बात है। बोले सर ये तो सेम मत बोल दीजिएगा भूल से भी, है ना। इट इज द डिटर्मिनेंट एंड इट इज अ मैट्रिक्स। आपको बहुत सोच समझ के बात करना है कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो इट्स अ मैट्रिक्स, इट्स अ डिटर्मिनेंट। Now we discuss some more results now based on the inverse के ऊपर बात करते हैं। First we have derived that okay A inverse is nothing but adjoint of A upon determinant of A, ठीक। हमने कहा था कि A is a square matrix when it is getting multiplied with B, if you are getting a unit matrix, in that case B is nothing but the inverse of A। B क्या है? तो B A का inverse है। कभी देखिए ध्यान से, so A into A inverse is equals to unit matrix, है ना। अगेन ये रिजल्ट किस मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है? तो इट होल्ड्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये रिजल्ट किसके लिए होल्ड करता है? तो इट होल्ड्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है। सो फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A into A inverse is coming as unit matrix, ठीक है। तो अगर ये A के लिए होल्ड करता है तो A इनवर्स, हाँ ये जरूर है कि A इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? A इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि डिटरमिनेंट ऑफ A मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0।
क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी तो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। इन प्लेस ऑफ ए, कीप ए इनवर्स। भैया ए मैट्रिक्स के लिए अगर होल्ड करता है तो ए इनवर्स इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो अगर ए के लिए होल्ड करेगा तो उसके इनवर्स के लिए भी करेगा। सो आई कैन राइट हियर ए इनवर्स in place of a inverse of that is equals to unit matrix। आ रहा है क्या समझ में? तो a के लिए होल्ड कर रहा है तो a इनवर्स के लिए भी करेगा, कर दिया, ठीक है। नाउ प्री मल्टीप्लीकेशन बाय मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के साथ में प्री मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बोले सर क्यों सोच रहे हो आप प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए? बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स विल बिकम अ यूनिट मैट्रिक्स, दैट इज द रीजन। सो प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए, राइट। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कम्युटेटिव लॉ तो होल्ड नहीं करता, लेकिन एसोसिएटिव लॉ तो जरूर होल्ड करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। वी हैव डिस्कस दैट। एसोसिएटिव लॉ से मतलब हुआ कि इफ ए बी सी दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी सी, दैट मीन्स इफ बी सी इज मल्टीप्लाइड विथ ए और ए बी इज मल्टीप्लाइड विथ सी, बोथ आर सेम, फाइन। क्यों किया प्री मल्टीप्लिकेशन? द रीजन इज ए इंटू ए इनवर्स बिकम्स अ यूनिट मैट्रिक्स। As far as A into I is concerned, AI, that will become A. Unit matrix multiplied with that, A inverse and inverse of that, that will be the same matrix, A inverse and inverse of that, which is A. What we are getting? A inverse and inverse of that is coming as the same matrix, A matrix. What you have discussed is, जो आप बोल रहे थे, adjoint of A, and if you take again adjoint of A, it's not going to be A. But A inverse, an inverse of that, A inverse is there, and if you take the inverse of that, you are going to get the matrix, A matrix. So one more result we got, that A inverse and inverse of that is matrix A, right? And that is the derivation part. Yes, we are discussing it for a non-singular matrix, that means determinant of A is not equals to 0 then. So we got one more result is A inverse, an inverse of that is coming as A matrix. Now we talk about a new result, and that is AB inverse. A is a square matrix, B is also a square matrix, both the matrices are of same order, then only the multiplication is possible then, and दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स दोनों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। इन दैट केस AB इनवर्स, दैट AB इनवर्स इज B inverse A inverse, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। AB inverse is equals to B inverse A inverse, A and B of square matrix of order n by n and non-singular। So determinant of A is not equals to 0, as well as determinant of B is also not equals to 0. So determinant of AB का जो multiplication करोगे, and if you take the determinant, it is also not equals to 0, मतलब ये सब inverse exist करेंगे। एक और important result कैसे आ जाता है उसको भी देखें हम, तो देखिएगा। B inverse A inverse is a matrix, ठीक है। A और B दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो B इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है और A इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, जरूर करता है। एंड इफ आई टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू, B इनवर्स A इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं लेता हूं, और B इनवर्स A इनवर्स के मल्टीप्लिकेशन को इफ आई मल्टीप्लाइड विथ AB,
ये ध्यान से देखिएगा इस बात को. If I take the multiplication of the two matrix B inverse A inverse, and if I take, let's say that B inverse A inverse को कुछ नया मैट्रिक्स मान लीजिए, B inverse A inverse, let's say it is equals to some new matrix which is a C matrix. ठीक है, ये नया मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन से C मैट्रिक्स आ रहा है. अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस B इनवर्स A इनवर्स में इफ आई मल्टीप्लाइड, इस C मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं विथ AB, C मैट्रिक्स, एंड C मैट्रिक्स इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ AB, ऐसा मैं परफॉर्म कर रहा हूं मैं. तो C मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ AB, लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ जरूर होल्ड करता है. सो आई कैन राइट इट B इनवर्स यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ लाइक दिस, ऐसा लिख सकता हूं मैं. दैट इज नथिंग बट द एसोसिएटिव लॉ. The reason is A inverse into A. So A inverse into A will become, A inverse A will become unit matrix. Right? And unit matrix getting multiplied with unit matrix getting multiplied with B will become B. And B inverse into B becomes a unit matrix. बट सर इससे आपने प्रूव क्या कर दिया, क्या लगता है आपको, क्या प्रूव कर दिया हमने? हमने ये प्रूव कर दिया कि C मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ AB, एंड व्हाट वी आर गेटिंग C मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ AB, वी आर गेटिंग एज अ यूनिट मैट्रिक्स. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AB मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो C है. जरूर लिख सकता हूं मैं, तभी तो यूनिट मैट्रिक्स आ रहा होगा. तो आई कैन डेफिनेटली से दैट AB मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ C मैट्रिक्स, एंड C मैट्रिक्स इज नथिंग बट B इनवर्स A इनवर्स. और हर मैट्रिक्स का एक जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा दैट इज गोइंग टू बी यूनिक. A मैट्रिक्स इज देयर, and if you are finding out the A inverse, that's a unit matrix, unique matrix. ऐसा नहीं होगा किसी एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आपको दो तीन इनवर्स मिल गए उसके, ऐसा नहीं होगा. तो सिंगल मैट्रिक्स ही होगा जो कि यूनिक होगा. तो व्हाट वी आर गेटिंग AB इनवर्स, एंड AB इनवर्स इज B इनवर्स इनटू A इनवर्स. और इसको वेरिफिकेशन करने के लिए हमें एक और बात जरूर प्रूव कर देना चाहिए, और वो ये प्रूव करना चाहिए दोस्तों कि इफ AB, अभी मैंने क्या किया, B इनवर्स A इनवर्स C मैट्रिक्स को मैंने AB से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया है. मुझे बताना होगा कि प्री मल्टीप्लिकेशन विथ AB, C मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लिकेशन किया AB से, विच इज नथिंग बट AB इंटू B इनवर्स A इनवर्स. दोस्तों ये रिजल्ट्स तो आपको याद रखना होंगे, लेकिन ये डेरिवेशन आपको मैट्रिक्स के बारे में स्ट्रेंथ देगा ये कि यार ये सब पॉसिबिलिटीज हैं और कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, क्या कर रहे हैं हम, ये क्लैरिटी आती है इससे. अगेन बाय एसोसिएटिव लॉ, B into B inverse, B into B inverse will become a unit matrix. That is nothing but A into A inverse, which is a unit matrix. So what we are getting that दोस्तों AB matrix multiplied with the C matrix, and again you are getting I. तो C into AB करो या AB into C करो, यू आर गेटिंग यूनिट मैट्रिक्स. दोस्तों क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो. AB इज इक्वल टू I, देन B इज नथिंग बट A इनवर्स. तो AB इज I हो तो ये बात भी तय है कि BA इज ऑल्सो इक्वल टू I. द रीजन इज A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, दैट इज इक्वल टू अ यूनिट मैट्रिक्स. एंड दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर. वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके हाथ लगा है, और वो ये है that AB inverse is equals to B inverse A inverse. रिजल्ट तो आप याद रखेंगे, ये तो तय बात है, और ये बहुत हेल्पफुल रिजल्ट होगा, बहुत हेल्पफुल रिजल्ट होगा. कैसे आ गया? वी हैव जस्ट लुक फॉर द डेरिवेशन पार्ट ऑफ इट.
Now again look for the explanation. AB inverse is equals to B inverse A inverse. A and B both are square matrix, same order के square matrix हैं. Value of the determinant A is not equals to 0, value of the determinant B is not equals to 0. दोनों मैट्रिक्स जो हैं दोनों के मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ. और दोनों जीरो नहीं है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. सो ए बी का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो ए इनवर्स इज एग्जिस्टिंग, बी इनवर्स इज एग्जिस्टिंग एज वेल एज ए बी इनवर्स इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग. अब रिजल्ट के लिए हमने क्या किया कि ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, लेकिन इसके वेरिफिकेशन के लिए बी इनवर्स ए इनवर्स आई हैव टेकन अ मैट्रिक्स बी इनवर्स ए इनवर्स. So A inverse is existing, B inverse is existing, AB inverse is also existing. हमने B inverse A inverse मैट्रिक्स लिया और उसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया AB के साथ में. B inverse A inverse and I have gone for the post multiplication with AB. हमने यहाँ पे ये प्रूव करा है कि A into A inverse is equals to unit matrix, so A inverse is the inverse of A. So B inverse A inverse लिया और उसका मल्टीप्लिकेशन ए बी के साथ में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया और यूजिंग एसोसिएटिव लॉ हमने बता दिया कि इट इज कमिंग एज अ यूनिट मैट्रिक्स. एट द सेम टाइम क्या किया हमने कि बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ में ए बी से प्री मल्टीप्लिकेशन भी किया और अगेन हमने प्रूव कर दिया कि इट इज ऑल्सो कमिंग एज अ यूनिट मैट्रिक्स. तो एक सीधी सी बात है कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो ए बी का जो इनवर्स होगा दैट इज नथिंग बट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहा. So AB inverse is equals to B inverse into A inverse. ठीक है. तब इस रिजल्ट को जब हमने डिराइव किया A मैट्रिक्स एज वेल एज B मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तभी इनवर्स की बात हो पा रही है. दोस्तों A इनवर्स क्या होता है? तो A इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो इसी रिजल्ट से मैं लेता हूं AB इनवर्स. तो AB inverse is nothing but adjoint of AB divided by determinant of AB लिखा जा सकता है. and B inverse adjoint of B divided by determinant of B, right? और A inverse is what? adjoint of A divided by डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं. सो एडजॉइंट ऑफ ए बी इन द डिवीजन इट इज ए बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. मैट्रिक्स एज वेल एज बी मैट्रिक्स बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उनके डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, राइट. एंड वी गॉट वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड दैट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ. मैंने आपको ये कहा कि रिजल्ट से इंपॉर्टेंट है, आप तैयार रखेंगे, लेकिन डेरिवेशंस के कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कोई अलग से कोई रिजल्ट निकालने को आता है या इसी से कोई रिजल्ट फ्रेम किया जाता है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप वहाँ पे बना पाएंगे. अगर आपको केवल रिजल्ट रटे हुए हैं तो फिर आप नहीं उसको डिराइव कर पाएंगे. डायरेक्टली तो रिजल्ट तो याद होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे, वो तो होना ही है, लेकिन डेरिवेशंस भी अगर आप समझ पाते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा. इजीली यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट. So what is that? Adjoint of AB which is equals to adjoint of B into adjoint of A, है ना. AB inverse is what? B inverse A inverse. And already what we have discussed during the transpose, if you remember, AB transpose, which is nothing but B transpose A transpose. ये तीनों को ध्यान रखो. देखो AB transpose is what? B transpose A transpose. AB inverse is what? B inverse A inverse. And adjoint of AB is what? Adjoint of B into adjoint of A. तो याद रखने में बड़ी सुविधा होगी आपको, राइट. सो यूजिंग द रिजल्ट A into adjoint of A which is determinant of A into a unit matrix, right? If I take the transpose both sides, A into adjoint of A and transpose of that,
determinant of A into unit matrix and transpose of that. Already we have discussed that K times A transpose is equals to K times A transpose, K times A multiplied किया हुआ है A के साथ में K multiplication में, and if you take the transpose of that, K is a scalar value, so that can be written as K times A transpose. Using that, determinant of A into I transpose, and I transpose is nothing but I. ठीक है. So at the same time देखो ये A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वाला जो रिजल्ट है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू अ यूनिट मैट्रिक्स. ये रिजल्ट तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है, और अगर होल्ड करता है तो इन प्लेस ऑफ A कीप A ट्रांसपोज. ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कहां परेशानी है. तो ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू अ यूनिट मैट्रिक्स. आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, कभी दिख नहीं रहा तेरे को, उधर देख देख जरा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम ही होता है. डिटर्मिनेंट में तो प्रॉपर्टी है, आपने देखा है कि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंजेबल, है ना. तो दोनों की वैल्यूज तो सेम ही होगी. दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स. यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद डिटर्मिनेंट, है ना. डिटर्मिनेंट तो अपनी जगह रहेगा, ये कहाँ जाएगा. यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दैट विल बी यूनिट मैट्रिक्स, बट मल्टीप्लाइड विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जैसा था वैसे ही रहेगा, राइट. थोड़ा सा अगर ध्यान से देख लें आप. अच्छा, अगर मैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स, तो ये भी तो हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दैट इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स. कोई खास बात तो नहीं. और यूजिंग दैट आई कैन अगेन से कि यार इसको ऐसा भी लिख दो तो कहाँ दिक्कत है. एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अ यूनिट मैट्रिक्स. अरे भाई ये दोनों चीजें बराबर ही हैं, तो इन प्लेस ऑफ ए ट्रांसपोज रखा, ठीक है. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको इसके बराबर रख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. बोला सर इससे क्या प्रूव कर दिया आपने. बाय दिस कैंसिलेशन लॉ. क्या कैंसिलेशन लॉ, ये समझा देता हूं मैं. इसको कह सकता हूं मैं बाय राइट कैंसिलेशन लॉ. I can definitely write adjoint of A and its transpose, adjoint of A transpose is equals to, it is what it is actually adjoint of A transpose of that. ये जो है adjoint of A and its transpose, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि ये सब बहुत हेल्प करेंगे आपको. मगर बोले सर एक ही तो है, एक नहीं है, क्या बोला है ये. A ट्रांसपोज और उसका एडजॉइंट लो, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ A इन इट्स ट्रांसपोज, राइट. तो एक नया रिजल्ट क्या किया, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए. A इंटू एडजॉइंट ऑफ A विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू यूनिट मैट्रिक्स. तो मैंने आई हैव टेकन ट्रांसपोज बोथ साइड्स, प्रॉपर्टी यूज कर ली, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ यूनिट मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए स्केलर वैल्यू, तो उसको बाहर ले आए यूजिंग दिस रिजल्ट. एंड आई ट्रांसपोज इज नथिंग बट आई, ठीक है. तो एडजॉइंट ऑफ ए इन ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है. अब ऑलरेडी हम ये भी जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स. तो अब ए की जगह हमने ए ट्रांसपोज रख दिया, रख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से. तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है. तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स को यहां से इक्वेट कर दिया गया, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. और हमने कंक्लूड किया कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। बोले सर ये क्या लिख दिया था, राइट कैंसिलेशन लॉ। कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं, वो भी देख लेते हैं हम क्या राइट कैंसिलेशन लॉ की बात कर रहा हूं मैं। बट बिफोर ऑफ दैट जस्ट नोट डाउन दिस। रिजल्ट्स काफी होते जा रहे हैं, ये तैयार रखेंगे आप, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने डिस्कस किया राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बहुत छोटी सी बातें देख लीजिएगा। देखिएगा, इफ आई राइट बी ए इज इक्वल टू सी ए, अभी जैसे हुआ था, क्या हुआ था, ए ट्रांसपोज मैंने बोथ साइड्स कैंसिलेशन किया था, तो राइट कैंसिलेशन लॉ की बात करें, बी ए इज इक्वल टू सी ए, तो हमने कहा राइट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू बी विल बी इक्वल टू सी। लेकिन क्यों, क्यों का जवाब देखिएगा। बी ए बोर्ड पे देखिएगा, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स के साथ में पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया। पोस्ट और प्री का तो ध्यान रखने वाली बात है, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल होल्ड नहीं करता है। तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। A into A inverse is equals to यूनिट मैट्रिक्स। काफी सारे लोग टाइम देखने लगे, मतलब कि so that will be equals to B equals to C and this is nothing but the, कुछ लोग हमेशा ही टाइम दे राइट कैंसिलेशन जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था मैंने, ए ट्रांसपोज दोनों साइड से कैंसिल किया था, राइट। एंड द सेम इज एप्लीकेबल इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी अगर ए सी के बराबर है ना, ए बी सी अलग अलग मैट्रिक्स हैं स्क्वायर ऑर्डर्स के, तो यहां पर हम प्री मल्टीप्लीकेशन बाय इनवर्स करेंगे, यहां पे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया था। ए इनवर्स into AB, that will be equals to A inverse into AC, and again using the associative law, A inverse into A will become a unit matrix, and unit matrix multiplied with B will be B, unit matrix multiplied with C will be C, so again you will be getting B equals to C, and that is nothing but the left cancellation law। सिंपल सी बात है, A inverse से प्री मल्टीप्लीकेशन या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन। A into adjoint of A is equals to determinant of A into unit matrix। ये सारे रिजल्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। सो A into adjoint of A is determinant of A into unit matrix, right। If I take inverse of that, A into adjoint of एक नया मैट्रिक्स है, अगर आप इसका इनवर्स लेते हैं क्या मिलेगा आपको, तो ए बी इनवर्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज बी इनवर्स ए इनवर्स। आपके सामने ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज अ न्यू मैट्रिक्स, उसका इनवर्स लिया मैंने, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू, क्या सजेस्ट करते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ दैट। विल रिमेन सेम, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में अगेन इफ आई टेक A into adjoint of A, which is adjoint of A into A, determinant of A into unit matrix, in place of A, A इनवर्स लिख दिया, क्योंकि अगर ये A मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा तो उसके इनवर्स के लिए भी करेगा। देखें जरा क्या रिजल्ट आता है,
adjoint of A inverse, right, into A inverse, that will be equals to A inverse. यहाँ पे ज़रूर सोचने वाली बात कि अगर ऐसा हम करते तो क्या होता है. इन प्लेस ऑफ A इनवर्स लिख दिया हमने, बट नाउ द पॉइंट इज, क्योंकि हम ये जिस रिजल्ट को डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे, बोर्ड पे देखिएगा, क्या ऐसा होगा क्या कि A इनवर्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या रिप्लेस कर सकते हैं. यहाँ पे जरूर ये सोचने वाली बात, क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर. इट इज एडजॉइंट ऑफ A रेज़ टू पावर -1 या एडजॉइंट ऑफ A रेज़ टू पावर -1 मतलब एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू यूनिट मैट्रिक्स. अभी मैंने फिर से उस रिजल्ट को लिखा और A को इन प्लेस ऑफ A इनवर्स लिख दिया. तो एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इंटू यूनिट मैट्रिक्स. यहाँ पे क्या किया था, पूरे का इनवर्स ले लिया था. अभी यहाँ पे क्या किया है, A को A इनवर्स से रिप्लेस किया. मेरा सवाल आपसे ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ A है और ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स है, इसका क्या किया जाए. कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या हम इसमें? एनीबडी? कुछ रिलेशन कर पाएंगे? सोचेंगे तो सब कुछ मिलेगा. रिजल्ट क्या आता नहीं आता ठीक है, देखा जाएगा. A इंटू A इनवर्स देखिएगा, A इंटू A इनवर्स होता है यूनिट मैट्रिक्स, इसमें तो कोई परेशानी नहीं. A इंटू A इनवर्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स. बोर्ड पे देख लीजिए, नई बातें, बहुत सारी नई बातें मिल रही हैं. A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स. इफ आई टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, ठीक है. अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या वैल्यू होगी उसकी? दैट विल बी 1. और ए बी और डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. यार भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो बहुत हेल्प करेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. दोस्तों मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, ये दोनों सेम नहीं होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके हाथ में लग गई जिसका आप बहुत बढ़िया यूज कर सकते हो, और वो ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. ये तो बहुत ही अच्छी बात आपके हाथ लग गई यूजिंग दैट. लेकिन मैं यहाँ पे एक बात है कि A इनवर्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट, इसको मैं सेम नहीं लिख सकता. ये 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा, तो इसको मैं इक्वेट नहीं कर पाऊंगा. इसे मैं इक्वेट नहीं कर पाऊंगा. मैं तो एक रिजल्ट डिस्कस करना चाह रहे थे हम कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, उसके थ्रू हमने कहा कि इफ आई टेक इनवर्स एंड लेट्स चेक व्हाट हैपेंस, बट दीज टू आर नॉट सेम. क्या रिजल्ट है? रिजल्ट ये है कि A इनवर्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. कैसे? बहुत सिंपल सी बात है. A इंटू A इनवर्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स. सो इफ यू टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, अगर उसका डिटर्मिनेंट आप लेते हैं बोथ साइड्स, ले लीजिए. यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 1. ए बी का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो यहाँ से ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और ये कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत हेल्प कर जाएगा आपको. ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल इसको यहाँ पे 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से रिप्लेस भी करूंगा तो मुझे कुछ हाथ नहीं लगने वाला यहाँ पर. राइट, देखें जरा कुछ रिजल्ट आता है क्या इसमें. इफ यू गो ऑन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन विथ ए, तो ये तो ए बन जाएगा, बट इट विल बी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सेम नहीं आएगा. एक्चुअली द रिजल्ट, जो मैं जिस रिजल्ट की बात करना चाह रहा था, एंड दैट रिजल्ट वाज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एंड इनवर्स ऑफ दैट. ठीक है, आप हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते. रिप्लेस करना होगा तो i डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये दोनों सेम नहीं है तो हम इक्वेट नहीं कर सकते इसको. हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ से रिजल्ट हम डिराइव नहीं कर पा रहे.